انگریزی میں لکھی جانے والی کتاب الکیمسٹ کا اردو ترجمہ جس میں لکھا گیا کیمیا گری، یہ وہ کتاب تھی جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں، ان کے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اس کتاب کے مصنف پاولو کویلو ہیں، لیکن اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا وہ کیا عمر الغزالی نے۔ اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مہماتی قسم کا ناول ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں خوبی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اپنی طرز کی ایک بہت مختلف، شاندار اور غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا اب تک 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اس کی کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، اور اس میں اردو ترجمے کی کاپیاں بھی شامل ہیں۔ اس پوری کتاب کی کہانی ایک لڑکے کے گرد گھومتی ہے۔ اس لڑکے کا نام سینتیاگو تھا، اندلس میں رہتا تھا۔ اس لڑکے کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اسے دنیا دیکھنی ہے، اسے دنیا کی سیر کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے چند بھیڑیں خریدیں اور ان کے ساتھ وہ ان کو چراتا، مختلف میدانوں میں، مختلف علاقوں میں جاتا اور سیر و تفریح رہتا اور نئی نئی جگہیں دیکھتا رہتا۔ ایک دن یہ لڑکا اپنی بھیڑیں چرا کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک چرچ کے قریب سے ہوا۔ اس چرچ میں اس نے رات گزاری، اس نے اپنی بھیڑیں اندر بند کر دیں، چرچ میں ایک کمرے کے اندر بند کر دیں اور خود وہیں سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ احرام مصر میں خزانہ دفن، اور یہ خواب وہ اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ اس خواب کو لے کر کافی پریشان رہتا، یہ خواب وہ کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنی بھیڑیں نکالی اور معمول کے مطابق وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ نکل پڑا۔ ایک تاجر تھا جو بھیڑوں کی اون خریدا کرتا تھا۔ اس نے لڑکے کو بھیڑ کی اون اتارنے کے لیے بلایا۔ وہاں پہ اس لڑکے کی ملاقات اس تاجر کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ اسے بہت پسند کرنے لگا اور دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ اسی کے خیالوں میں اکثر گم رہتا تھا۔ ایک بار اس کے ذہن میں خیال آیا اس کو کہ وہاں اس شہر میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس عورت کے پاس گیا۔ وہ عورت ایک خانہ بدوش لگتی تھی۔ لڑکے کو ڈر تھا کیونکہ اس وقت خانہ بدوش لوگوں کو اغوا کرتے اور ان سے بھیک منگواتے تھے۔ وہ لڑکا بہت پریشان ہوا اور نروس ہونے لگا، اور لڑکے نے اس عورت سے کہا کہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر نہیں جاننی، مجھے گھر جانا ہے۔ تو اس سے بات کرتے کرتے لڑکے کے پاس معقول معاوضہ بھی نہیں تھا اس کو دینے کے لیے، تو ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ آخرکار اس عورت نے لڑکے سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا۔ لڑکے نے اپنا سارا خواب بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گی، بشرط یہ کہ تم مجھے اس خزانے کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے فوراً حامی بھر لی اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور خزانہ ڈھونڈو، وہ تمہیں ایک دن امیر آدمی بنا دے گا، بہت امیر بنا دے گا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے چل دیا۔ اگلے روز لڑکا بازار گیا اور وہاں اس نے اپنی وہ پرانی کتاب جو وہ پڑھا کرتا تھا اکثر، وہ دے کے اس نے اس کے بدلے ایک اور کتاب خریدی اور بینچ پہ آ کے بیٹھ گیا، پڑھنے لگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن وہ لڑکا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار مختلف بہانوں سے یہ ظاہر کیا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بوڑھا اس سے بات کرنے پر بہت مصر تھا۔ وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس نے بات شروع کی، باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ اگر تم اپنے پورے گلے کا 10واں حصہ دے دو، میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں۔ لڑکا بہت حیران ہوا، اس کو یقین نہیں آیا۔ اسے لگا یہ اس عورت کا خاوند ہے جس نے اسے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے اس بوڑھے آدمی نے چھڑی سے ریت کے اوپر اس لڑکے کے والدین کا نام لکھا اور تاجر کی بیٹی کا نام بھی لکھا۔ تو وہ لڑکا بہت حیران ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ سلم کا بادشاہ ہے، ایک علاقے کا نام بتایا کہ وہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ لڑکے کو یقین نہیں آیا کہ ایک بادشاہ اس سے کیوں بات کرے گا۔ تو وہ بوڑھا اسے بتاتا ہے کہ کیونکہ تم نے اپنی منزل کو پہچان لیا ہے، میں اس لیے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی کو کیا پتا کہ اس کی منزل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ چیز جس کی خواہش کے لیے وہ دعا کرے اور جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہو وہ اس کی منزل ہوتی ہے۔ اس سے باتیں کرتے کرتے لڑکے نے اس سے حامی بھر لی، ٹھیک ہے کہ وہ اسے پہلے اس نے کہا کہ اسے خزانے کا 10واں حصہ دے گا، لیکن بوڑھے نے اسے کہا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم مجھے وہ دینے کی کمٹمنٹ کیسے کر سکتے ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنے گلے کا 10واں حصہ دو۔ لڑکے نے پہلے سوچا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے اپنی بھیڑیں بیچی اور اس میں سے وہ جو 10واں حصہ تھا وہ اس بوڑھے کے لیے رکھ لیا، باقی اس نے بیچ دی اور وہ بھیڑیں لے کے آ گیا اور اس نے وہ بوڑھے کے حوالے کر دی۔ بوڑھے نے اسے 2 پتھر دیے اور کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو تو تم ان سے سوال کر لینا، یہ تمہیں صحیح جواب دیں گے، لیکن سوال
वाज़ेह अंदाज में करना। वो लड़का वहाँ से अफ्रीका की तरफ रवाना हो जाता है, जो वहाँ से 2 घंटे की मुसाफत पर था। अफ्रीका पहुंचकर लड़का एक कहवा खाने पर रुकता है। वहाँ उससे एक अजनबी मिलता है जो उससे बातें करता है और उसके काफ़ी करीब हो जाता है। वो उसको अपना दोस्त समझने लगता है। कहवा खाने पर बैठे वो उससे बातें कर रहा होता है कि कहवा खाने का मालिक उसे मना भी करता है। कहवा खाने का मालिक उस लड़के के साथ उसको देखकर अरबी में कुछ बोलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद वो लड़का उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। बाजार पहुँचते हैं, वो लड़के की नज़र थोड़ी देर के लिए एक तलवार पर पड़ती है। लड़का उस तलवार की तरफ देखने लगता है, लेकिन पीछे उसको पता चलता है कि उसका वो जो दोस्त था, वो अजनबी, वो उसकी तमाम जमा पूंजी लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लड़का बहुत परेशान होता है, वो वहीं सो जाता है। जब उसकी जाग होती है उस बड़े बाजार में, वो उठता है और वहाँ से वो चल पड़ता है एक तरफ। बहुत परेशान होता है वो, तो वहाँ से चलते चलते एक मिठाई की दुकान पे, वो बेकरी वाला वहाँ पे अपनी चीज़ें सेट कर रहा होता है। ये उसकी मदद करता है, वो उसको खाने के लिए कुछ मिठाई देता है। ये शुक्रिया के साथ लेके वहाँ से चल पड़ता है। आगे जाता है, एक पहाड़ी के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान होती है। ये वहाँ जाता है और क्रिस्टल की दुकान के मालिक से कहता है कि वो क्रिस्टल को साफ कर देगा, बदले में अगर वो उसे खाना खिला दे। तो दुकानदार उस पर राज़ी हो जाता है। वो वहाँ पे सफाई करता है कि इतने में वहाँ गाहक आना शुरू हो जाते हैं। तो दुकानदार उसको नेक शगुन समझता है और उसको पक्का उस पर अपनी दुकान पे मुलाजिम रख लेता है। वो उसको माकूल तनख्वाह भी देता है। वो वहाँ सोचता है कि वो अपना रेवड़ बना लेगा और दोबारा वापस चला जाएगा। खजाने की तलाश अब उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाती है। वहाँ काम करते करते काफ़ी 11 माह तक वो वहाँ काम करता है और उसके पास माकूल पैसे जमा हो जाते हैं, इतने पैसे कि वो उनसे अपनी भेड़ें भी खरीद सकता है और कारोबार भी कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ से रवाना होता है। वो वापस जा रहा होता है, लेकिन उसको ख्याल आता है, अपने ख़जाने का ख्याल आता है। उस क्रिस्टल की दुकान से काफ़ी काफ़िले गुजरते हैं जो कि मिस्र की तरफ जाते हैं। वो लड़का उसमें से एक काफ़िले के साथ रवाना हो जाता है। उस काफ़िले में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज़ से होती है। वो अंग्रेज़ एक कीमियागर की तलाश में उस काफ़िले में साथ होता है और वो भी सहरा की तरफ जा रहा होता है। किसी ने उसको बताया होता है कि नखलिस्तान में एक कीमियागर रहता है जो कि किसी भी धात को सोने में बदलने का फ़न जानता है। अंग्रेज़ के बाद बहुत सी किताबें होती हैं और वो नखलिस्तान जाना चाहता है उस कीमियागर से मुलाकात के। ये दोनों काफ़िले के साथ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में इन्हें पता चलता है कि जंग छिड़ गई है और ये अब आगे मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकते और ये वहाँ पे एक नखलिस्तान पहुँचते हैं और वहाँ ये क़याम करते हैं कि जब तक जंग ख़त्म होती है हम यहीं रहेंगे। वहाँ कीमियागर को तलाश करते करते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, एक फातिमा नामी लड़की से। उस लड़की से उसको प्यार हो जाता है और वो लड़की उसको वो अपनी मोहब्बत समझता है और सच्ची मोहब्बत समझता है। वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। वहाँ रहते हुए एक दिन वो ऐसे बैठा हुआ होता है कि वो 2 बाजों को उड़ता हुआ देखता है। अकाब बाज हवा में उड़ रहे होते हैं। वो उनको देखता है कि एक बाज जो है वो दूसरे पे झपटता है। तो उसको कुछ डर लगता है, क्योंकि वो एक उस बूढ़े बादशाह ने उसको कहा था कि निशानियों पे नज़र रखना, ये निशानियाँ ही तुम्हें आगे लेकर जाएंगी, ये निशानियाँ ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता बताएंगी। तो उससे ख्याल गुजरता है कि अचानक उसके सामने एक तस्वीर सी आती है कि उस नखलिस्तान पे हमला हुआ है, वो जंगजुओं ने उस पे हमला कर दिया। वो ये बात एक बदू को बताता है जो वहाँ पे उसके साथ होता है, जो उस पूरे काफिले में उसके साथ होता है और वो ऊँटों का हदीबान होता है, आगे ऊँट पकड़कर चलने वाला। वो उसको बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, ऐसा महसूस किया। वो उसे कहता है कि तुम जाओ और जाके यहाँ के जो सरदार हैं इस नखलिस्तान के उनको बता दो। पहले तो वो झिझकता है, लेकिन बाद में वो चला जाता है। वो जाके सरदारों को कहता है। दूसरे सरदार तो बहुत उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन बड़ा सरदार जो उनका होता है वो उसकी बात मान लेता है। तो बिल्कुल उसके कहने के मुताबिक वहाँ एक हमला होता है, जंगजू उस पर हमला करते हैं, लेकिन आगे से नखलिस्तान के बासी उस हमले के लिए तैयार होते हैं। ये उन हमलावरों को घेर लेते हैं और सिवाय उनके कमांडर के बाकी सबको मार देते हैं। वो उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि हमने हमला इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास जो पानी है और वसाइल थे वो ख़त्म हो गए थे। तो भूख और प्यास की वजह से हमने यहाँ हमला किया था कि यहाँ कब्जा करके हम कुछ खाने पीने को हासिल कर सकें। इस बात के बाद वो गाँव वाले, वो नखलिस्तान के बासी उससे बहुत खुश होते हैं और वो उसको अपना एडवाइज़र मुकर्रर कर लेते हैं। उस लड़की से मिलता है और उसे अपने ख्वाब के बारे में बताता है। लड़की उसको कहती है कि तुम जाओ अपने ख्वाब को पूरा करो, वो उस खजाने को ढूंढो, क्योंकि सहराई औरतें, उनके मर्द हमेशा वहाँ जाते हैं और वो उनके वापस आने का इंतज़ार करती है। तुम भी जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँ। तो उस हमले के दौरान वहाँ पे उसे वो कीमियागर भी मिलता है जिसकी तलाश में वो अंग्रेज़ होता है। अंग्रेज़ की भी उससे पहले उससे मुलाकात होती है। वो अंग्रेज़ को कहता है कि तुम मेहनत करो और अमल करते रहो, तुम भी ये फ़न हासिल कर लोगे। वो कीमियागर जब उस लड़के से मिलता है वो उसे कहता है कि अगर तुम इस हमले में बच जाओ, उस हमले से पहले उसकी मुलाकात होती है, तो वो उसको कहता है अगर तुम इस हमले में बच जाओ तो मेरे पास आना।
हमले वाले दिन के बाद लड़का उसके पास जाता है, वो उससे बातें करता है और वो उसे कहता है कि तुम जाओ और अपना ख्वाब पूरा करो, तुम्हें खजाना ज़रूर मिलेगा। लड़का उसको बताता है कि उसे अब कहीं नहीं जाना, उसे उस लड़की के साथ रहना है हमेशा। खजाना मतलब वो उससे बिल्कुल ही नाउमीद हो चुका होता है, उसका दिल भर चुका, वो समझता है कि बस मेरा खजाना यही लड़की। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम जाओ, तुम तलाश करो, तुम्हें खजाना ज़रूर मिलेगा। अब तो तुम सहरा की ज़ुबान भी समझ सकते हो और मुख्तलिफ निशानियों को भी पहचान सकते हो। पहले तो लड़का नहीं मानता, रास्ते से वापस आ जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो दोबारा रवाना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सफ़र के दौरान कीमियागर के पास एक उकाब होता है, वो शिकार करके लाता है और ये दोनों रात में वहाँ पे किसी ओट में बैठ के आग जलाते हैं और वहाँ पे ये वो शिकार पका के खाते हैं ताकि किसी जंगजू को पता ना चले कि यहाँ पे कोई मौजूद है। दौरान सफ़र वो कैंप से गुजरते हैं, वहाँ पे जंगजुओं का एक कैंप होता है, तो उनको दो घुड़सवार चेज़ करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं। ये उनको बताते हैं कि ये मुसाफिर हैं और सफ़र की गर्ज से जा रहे हैं, तो वो उनको जाने देते हैं। आगे जाके उनको वो एक पहाड़ी के दामन में पहुँचते हैं, वहाँ उनको एक दो घुड़सवार पहले आते हैं और उसके बाद वो सैकड़ों हो जाते हैं, वो उनको घेर लेते हैं, उनको अपने सरदार के पास ले जाते हैं, अपने जंग के कैंप में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जासूस हैं, क्योंकि इनको जो पीछे उनके दुश्मन का कैंप था उनके लोगों के साथ भी देखा गया था और उस कैंप के करीब भी देखा गया था, तो ये जासूस है। वो उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो कीमियागर सरदार को कहता है कि ये मेरा दोस्त, ये अपने आप को हवा में तहलील कर सकता है और इस पूरे कैंप को हवा में उड़ा सकता है। तो वो इस बात को नहीं मानते। लड़का भी बहुत परेशान होता है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उसके बाद वो लड़का जाता है। उसके बाद कीमियागर उसको समझाता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद लड़का एक पहाड़ की चोटी पे जाके वो हवा से भी मुखातिब होता है, सूरज से भी मुखातिब होता है और वो कोशिश करता है और ऐसा हो सहरा, हवा और सूरज कि वो उनसे मजीद काफ़ी देर बातें करता है। उनसे बातें करते करते वो एक तूफान सा उठता है, हवा भी उसकी मदद करती है, एक तूफान सा उठता है और पूरा जो है वो उनका पूरा कैंप उखड़ जाता है। वो उसको रोक लेते हैं और फिर उनको वो जाने देते हैं। वो कैंप वाले उनके साथ अपने कुछ दस्ते भी भेजते हैं ताकि उन्हें बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचा सकें। आगे एक खानका के करीब पहुंचते हैं तो वो उनको वापस जाने का कह देता है, तो वो दस्ता उनको वहाँ छोड़ के वापस चला जाता है। कीमियागर नॉक करता है, दरवाज़ा बजाता है, अंदर से एक राहिब निकलता है। वो उसके पास जाके उससे कुछ पकाने के लिए कोई बर्तन मांगता है, वो उसको बर्तन देते हैं, तो वो वहाँ से उस बर्तन में वो के पास कोई चीज़ होती है, वो उसको बर्तन में डालता है और उसको आग पे पकाता है। थोड़ी देर में वो सोना बन जाते हैं। वो उसके टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है, एक लड़के को दे देता है, एक उस राहिब को, और एक चौथा टुकड़ा भी उस राहिब को दे देता है कि ये लड़के का है, अगर कभी इसको जरूरत पड़े तो इसको ये वापस दे। वो वहाँ से चला जाता है। लड़के को बोलता है कि आगे अब तुम्हारा अकेला सफर है। लड़का वहाँ से एहराम मिस्र पहुँच जाता है। जब वो एहराम मिस्र पहुँचता है तो वो वहाँ एहराम के करीब बैठा होता है, एहराम के दामन में बैठा होता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो आंसू का कतरा जहाँ गिरता है तो उसे लगता है कि उसे यहीं ढूंढना चाहिए। वो वहीं खुदाई शुरू करते हैं ताकि खजाना ढूंढ सके। वो खजाना ढूंढते ढूंढते कुछ लोग आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं, वो उनको पहले तो कुछ नहीं बताता, पहले फिर वो उसको पकड़ के मारते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं, तो वहाँ से सोना निकलता है। तो उनको लगता है कि शायद यहीं पे ये कोई सोना छुपा रहा है, तो वो उससे पूछते हैं और उसको मजीद कहते हैं कि खोदो। वो उनको सब बता देता है कि ऐसे ऐसे उसने ख्वाब। तो वो जो बंदा होता है जिसने उसको पकड़ा होता है वो उसको कहता है कि ऐसा ख्वाब तो मैंने भी कई बार देखा है कि इंदलिस में एक चर्च है, उस चर्च में एक इंजीर का दरख्त है और उसकी जड़ों में खजाना है। तो वो उसी चर्च का और उसी का बता रहा होता है जिसमें वो सोया था रात को और वहाँ उसने ख्वाब देखा था। तो वो फौरन समझ जाता है कि खजाना वहीं पर है। फिर वो वहाँ से वापस जाता है, अपने उस शहर में जाता है, स्पेन में जाता है और उस चर्च के पास जाता है। वो उस चर्च में देखता है तो वहाँ से उसे खजाना मिलता है। वहाँ एक संदूक होता है जिसमें हीरे जवाहरात होते हैं और ये संदूक एक माले गनीमत होता है जिसको लोग भूल चुके होते हैं और वो वहीं दफन होता है। वो उस खजाने को निकाल लेता है, अपनी मंजिल को पा लेता है और उसके बाद वो वापस अपनी वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसके पास वापस चला जाता है। तो ये एक कहानी है उसकी।